Now students, we have to discuss exercise number 3. Account for the following. And the question number 1 is pKb of aniline is more than that of methylamine. So first of all, we have to draw the structure of methylamine. This is the structure of methylamine, and this is the structure of aniline. Okay friends, in methylamine, CH3 group have a plus I effect which have a tendency to increase the density of electron pair on nitrogen atom, while here in aniline, nitrogen is directly attached to the aromatic cycle of benzene, so it delocalizes the electron on benzene. Due to this reason, basic character of aniline is going to be less than methylamine. So we can say that friends, methylamine is more basic, aniline is less basic, and the compound which is less basic have a higher value of pKb. Okay? तो जो मैं बोला वो हिसाब से आपको वर्डिंग लिख लेना है, या मैं कुछ वर्डिंग लिखता हूँ. CH3 group have a plus I effect, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. Due to this, electron density increase on nitrogen atom, so they are strong base. They are what? Strong base. और यहाँ पे क्या लिखेंगे? In aniline, an atom directly joint with benzene, so electron pair is delocalized on benzene, so they are less basic, so pKb is more. So pKb is more. तो इस तरह से दोस्तों आपको रीजन भी मेंशन करने का है, जो मैं बोला वो आपको वर्डिंग में भी इस तरह से नोट आउट करने का है. ओके फ्रेंड्स, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, इथाइलामाइन इज सॉल्युबल इन वाटर whereas aniline is not. तो दोस्तों इथाइलामाइन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है. दिस इज इथाइलामाइन, C2H5NH2. These ethylamine have a tendency to form hydrogen bond with molecules of water. Ethylamine have a tendency to form which bond? Hydrogen bond with molecules of water. Hydrogen bond is always formed with highly electronegative element of one molecule. नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन का कम है, तो ये दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? दिस इज विच बॉन्ड? H bond. Sorry. While in aniline, no hydrogen, no H bond is formed. And why hydrogen bond is not formed? Because C6H5 is hydrophobic group. C6H5 is which group? Hydrophobic group. While here we can say ethylamine have hydrogen bond with H2O, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा सो इट इज वाटर सोल्यूबल. तो यहाँ लिखेंगे सो इट इज वाटर सोल्यूबल, और यहाँ लिखेंगे सो it is water
insoluble. ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन लिखने का है, ये डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्ड का वाटर के साथ. ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स. Students, we have to discuss the third question. Methylamine in water reacts with ferric chloride to precipitate hydrated ferric oxide. तो दोस्तों मिथाइलामाइन का फॉर्मूला है CH3NH2. नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, सो इट इज एक्ट एज ए बेस. रिएक्शन किया वाटर के साथ H2O, तो वाटर हो जाएगा एसिड. अकॉर्डिंग टू लॉरी-ब्रोस्टेड एसिड बेस थ्योरम, एसिड H+ को लॉस्ट करेगा और बेस H+ को गेन करेगा. व्हाट वी कैन गेट CH3NH3 plus OH minus in which medium? Aqueous medium. This process is called as a protonation process, and due to this protonation process OH minus ions are separated in where? Aqueous medium. तो यहाँ लिखेंगे methylamine is base and reacts with water, produces OH minus ion. क्या बनाता है वो? OH minus ion, which reacts with FeCl3 to gives ब्राउन कलर PPTS. प्रेसिपिटेशन कौन से कलर का देगा दोस्तों? ब्राउन कलर का. FeCl3 कैसा एक्ट होगा? FeCl3 gives Fe+3 plus 3Cl-. अब रिएक्शन कैसे होगा? तो these two Fe+3 react with 6OH minus to gives FeOH thrice 2 times. Either we can say that Fe2O3 into 3H2O, Fe2O3 into 3H2O. This is brown color. कौन सा कलर का है? ब्राउन कलर का दोस्तों. So we can say that methylamine reacts with water with ferric chloride to precipitate hydrated ferric oxide. So this one is our hydrated part. ओके दोस्तों, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको लिखने का है. नाउ वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, वी हैव टू डिस्कस द फोर्थ क्वेश्चन. Although amino group is orthopara directing in aromatic substitution reaction, aniline on nitration gives a substitutional amount of meta-nitroaniline. मतलब कहना ये चाहते हैं कि जब एनिलीन का हम नाइट्रेशन करेंगे तो ऑर्थो एंड पैरा में मेटा प्रोडक्ट भी ज्यादा मिलती है. व्हाट इज द रीजन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, नाइट्रेशन रिएक्शन का कंडीशन. व्हाट इज द कंडीशन ऑफ नाइट्रेशन रिएक्शन? तो कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 इन एसिडिक मीडियम. एसिडिक मीडियम में कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 का रिएक्शन करेंगे तो वो नाइट्रेशन का कंडीशन होगा. हियर इन aniline NH2 group is ortho and para directing group. NH2 group is which group? An ortho-para directing group, and NH2 group have a more steric effect at ortho position. कौन से पोजीशन के ऊपर दोस्तों? ऑर्थो पोजीशन के ऊपर उसका स्टेरिक इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है.
Due to this reason, ortho product is less than para. Next one, in acidic medium, by protonation of NH2 group, NH3 plus ion is obtained, which is meta-directing. NH3 plus आयन कौन सा है दोस्तों? मेटा डायरेक्टिंग है, बराबर। तो यहाँ पे हम दो तरीके से रिएक्शन लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं लूंगा एनिलीन और उसका कंडीशन लिखूंगा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कंडीशन में किसके साथ होगा? कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। जो NO2 प्लस आएगा वो ऑर्थो एंड पैरा पे जाएगा, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। बट डियर फ्रेंड्स, व्हाई वी आर ऑब्टेनिंग मोर अमाउंट ऑफ पैरा प्रोडक्ट? पैरा नाइट्रोएनिलीन ज्यादा क्यों मिलेगा? इट इज ऑब्टेनिंग 51%, while ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन only 2%. Why? This one is ONP, sorry ONA. इसका कौन सा इफेक्ट है दोस्तों? स्टेरिक इफेक्ट। तो मैंने ऑलरेडी वर्डिंग में मेंशन किया है। इसका कौन सा इफेक्ट है? स्टेरिक इफेक्ट है, इसलिए वो सिर्फ 2% मिलता है। अब ये जो एनिलीन है वो एसिड की प्रेजेंस में बनाएगा एनिलीनियम आयन NH3+। दिस इज योर मेटा डायरेक्टिंग। तो जब इसका नाइट्रेशन करेंगे हम, नाइट्रेशन का कंडीशन कौन सा है? आपके सामने लिखा है नाइट्रेशन। किस तरह से होगा? कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। NO2 प्लस ग्रुप प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो जाएगा कौन सी जगह पे दोस्तों? मेटा पोजीशन पे जाएगा, एंड वी कैन ऑब्टेन मेटा नाइट्रोएनिलीन। क्या मिलेगा फ्रेंड्स? बोलो, मेटा नाइट्रोएनिलीन। और ये जो मेटा नाइट्रोएनिलीन है वो तकरीबन 47% मिलता है। तो दिस इज द रीजन। ये रीजन भी लिखने का, ये इक्वेशन भी लिखना पड़ेगा। सच क्वेश्चन आस्किंग 2 मार्क्स। ओके फ्रेंड्स, now student we have discussed question number 5. Aniline does not give Sweden-Craft reaction. तो फ्रेंड्स एनिलीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये हो गया आपका एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2 जिसके पास लोन पेयर है। तो एनिलीन डियर फ्रेंड्स एक्ट होगा लुईस बेस। एनिलीन कैसे एक्ट होगा दोस्तों? लुईस बेस। ओके, क्यों? जिसके पास लोन पेयर है, they are act as a Lewis base, and Friedel-Crafts reaction is take place with anhydrous AlCl3 catalyst, aluminium chloride। तो दोस्तों अब हम एल्यूमिनियम क्लोराइड का लुईस डायग्राम चेक करेंगे। तो दिस इज द लुईस डायग्राम ऑफ AlCl3। 11th में हम सीखे थे लुईस डायग्राम, हाउ वी हैव टू ड्रॉ। तो दिस इज द लुईस डायग्राम ऑफ AlCl3। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो AlCl3 में एल्यूमिनियम है, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट, तो इट इज एक्ट एज ए व्हाट? लुईस एसिड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन करेंगे तो ये कैटालिस्ट इसके साथ ज्वाइंट होकर बनाएगा क्या? C6H5 NH2 प्लस AlCl3 माइनस। C6H5 NH2 प्लस AlCl3 माइनस। एंड दोस्तों वर्डिंग में लिख सकते हैं when NH2 प्लस AlCl3 minus is obtained,
here on nitrogen atom positive charge is there due to this charge electron density in benzene decreases. बेंजीन पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होता है, सो इट इज नॉट एबल टू गिव फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन को दोस्तों हम एफसी रिएक्शन भी बोलते हैं। समझ में आया? ये लुईस बेस है, ये लुईस एसिड है। रिएक्शन से अपने को ये मिला 6H5NH2 प्लस AlCl3 माइनस। नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ड्यू टू डिक्रीज इन डेंसिटी इट इज एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग डीएक्टिविटी ग्रुप। सो बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या हो जाता है दोस्तों? कम हो जाता है। सो इट इज नॉट एबल टू परफॉर्म फिडल-क्राफ्ट एल्किलेशन as well as फिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो इस तरह से दोस्तों आपको आंसर लिखने का है। नाउ वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। Students, we have discussed 6 question and the question is diazonium salt of aromatic amines are more stable than those of aliphatic amines। तो उसका जो सबसे ज्यादा रीजन है वो क्या है? dispersal of positive charge on benzene ring। बेंजीन रिंग के ऊपर जो उसका पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखो दोस्तों, मैं उसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो आपको समझाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से समझने का। This is the डाइजोनियम सॉल्ट। ये कौन सा सॉल्ट है दोस्तों? डाइजोनियम सॉल्ट। क्या होगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर में? तो ये ट्रिपल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये नाइट्रोजन के पास जाएगा, तो सबसे पहले क्या होगा? ये जो पाई बॉन्ड है वो चला जाएगा किसके पास? ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच, और हो जाएगा क्या? इस तरह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। अब ट्रिपल बॉन्ड की जगह पे बाकी रहेगा डबल बॉन्ड, यहाँ दोनों के बीच में डबल बॉन्ड जाएगा। अगेन यहाँ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के पास, एक की जगह पे 2 पेयर, यहाँ हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज योर फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा 4th पोजीशन पे। तो दिस इज वंस अगेन वी ऑब्टेन नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। This is the another resonating structure, again positive charge, double bond, और यहाँ होगा आपका नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा? ये पाई बॉन्ड आएगा 4th पोजीशन पे, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर चला जाएगा यहाँ पे। मिलेगा क्या दोस्तों आपको? ये पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज। अगेन दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और वापिस क्या होगा फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्या होगा? तो अब ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा बराबर, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगेन यहाँ पे आ जाएगा। तो जो पहले जैसा स्ट्रक्चर था वही हमको मिल जाएगा। एन ट्रिपल बॉन्ड एन, यहाँ पॉजिटिव, अगेन इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, एंड दिस टू आर आल्सो a resonating structure of whom? This डाइजोनियम सॉल्ट। सो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो बेंजीन के ऊपर डिस्पर्स हुआ है। ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज वी कैन से दैट डाइजोनियम सॉल्ट इज मोर स्टेबल देन एलिफेटिक एमाइन्स डाइजोनियम सॉल्ट। ओके, तो इस तरह से आपको दोस्तों लिखने का है। नाउ वी आर डिस्कसिंग लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज नंबर 3। Now students, last question of exercise 3 is Glabial thalamide synthesis
is preferable for synthesizing primary amines और वो भी एलिफेटिक रीजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द थैलेमाइड which is used for a globular synthesis। ये क्या है दोस्तों? थैलेमाइड। ओके, नाउ दिस थैलेमाइड रिएक्ट विद KOH, व्हाट हैपेंस? यहाँ से H और OH जाएगा, माइनस हो जाएगा H2O और ये पोटेशियम सॉल्ट यहाँ बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड। आइदर इसको हम थैलेमाइड आयंस भी बोल सकते हैं, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। ओके दोस्तों, इसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? पोटेशियम सॉल्ट। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? पोटेशियम सॉल्ट। इज दैट क्लियर? नाउ दिस पोटेशियम सॉल्ट रिएक्ट विथ अल्काइल एमाइन्स। तो जैसे रिएक्शन होगा एक K और I चला जाएगा, माइनस हो जाएगा Ki। फ्रेंड्स याद रखो, key factor of this reaction is this one is follow SN2 reaction mechanism और SN2 reaction mechanism alkyl halide fast देता है। ओके, तो यहाँ पे अपने को मिलेगा क्या दोस्तों? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N और R, इसको हम बोलेंगे क्या? N अल्काइल थैलेमाइड। क्या बोलेंगे? N अल्काइल थैलेमाइड। और उसका फर्दर मैं करूंगा दोस्तों हाइड्रोलिसिस with 2H2O in the presence of basic medium like NaOH। What happens? तो यहाँ से ये इतना पार्ट 2H2 के साथ जाएगा, बनेगा RNH2। This is our primary aliphatic amine and after the end of the reaction we can obtain थैलिक एसिड। क्या मिलेगा दोस्तों? थैलिक एसिड। कौन सा एसिड दोस्तों? थैलिक एसिड। याद रखो, अगर हम ये पोटेशियम सॉल्ट का रिएक्शन एराइल हैलाइड लाइक क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म SN2 मैकेनिज्म, मतलब प्राइमरी एरोमेटिक amines are not produced with the help of this reaction। तो दोस्तों इसका मेन की फैक्टर है SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। और दूसरी बात, they have a tendency to form only primary aliphatic amine, not able to form primary as well as secondary amines, aliphatic as well as aromatic। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू वेरी मच। और एक बात और बता दूं, एक्सरसाइज नंबर 12 सिमिलर क्वेश्चन है, आप वहीं पे भी देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।